Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम बात करेंगे अभी एक चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से क्या क्या होता है. ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग. अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स डील किए हैं, देखो ये सब हमने कॉन्सेप्ट डील किए. तुम जो बोल रहे हो यूनिफॉर्मली, ये वी हैव ऑलरेडी डन दिस. ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसके अंदर क्या होता है. ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, ये भी हमने देखा है. यूनिफॉर्मली चार्ज क्वार्टर रिंग, ये हमने देखा है. ठीक है, दीज आर केसेस विच वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड इन डिटर्मिनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्टर रिंग, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल फील्ड. तो यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा है एक एक्सटर्नल फील्ड में. ठीक है, सो व्हाट आर द इंपैक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग सेक्टर है भाई साहब. ठीक है, कंसिडर अ सेक्टर ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस r and charge q is distributed uniformly along the circumference of the ring. ठीक है, तो आपका भाई साहब कोई सेक्टर है और यहाँ पे भाई साहब चार्ज जो है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. द रिंग सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द सेंटर p. तो यहाँ पे ये रिंग है और ये क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा एट द सेंटर p एंड द y एक्सिस. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे द y एक्सिस डिवाइड्स द रिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स. आप देखो यहाँ पे ये जो y एक्सिस है ये बेसिकली क्या कर रहा है भाई साहब, रिंग को डिवाइड कर रहा है इनटू टू इक्वल हाफ्स. ये आपका y एक्सिस है. ठीक है, दिस इज डिवाइडिंग द रिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स. ये एक रिंग है भाई साहब जो एंगल सबटेंड कर रहा है क्या, अल्फा. ठीक है, कंसिडर अ सेक्टर ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस r. इसका रेडियस r है और यहाँ पे q चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे रिंग में. देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज कैपिटल Q. क्या ये समझ में आ रहा है? इट इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट द सेंटर. The radius of this ring is r. ठीक है, clear है? Okay. Uniformly distributed around the ring subtend an angle alpha at the center p, and the y-axis divides the ring into two halves. ठीक है? To find the net electric field by a sector of a uniformly charged ring at its center p, let us consider small elemental charge dq of thickness dx. ठीक है? तो अपन ने भाई साहब क्या किया, dq और इसका थिकनेस कितना है भाई साहब आपका dx. ये dq चार्ज है और लेट्स से dx है इसका थिकनेस. ठीक है, okay, a small element charge dq of thickness dx at an angle theta from the vertical. The angular width of the small elemental charge is d theta. तो आप समझ लो भाई साहब ये जो angular width है वो कितना है, d theta है. ठीक है, and the electric field at a point p due to the small elemental charge dq is de. तो लेट्स से भाई साहब इस चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, de इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है. ये dq चार्ज है which is subtending an angle how much, d theta, and due to this dq charge the electric field which is getting created at this point is let's say de. तो de को अगर आप रिजॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा बोलो. यहाँ पे ये वाला एंगल आपका भाई साहब कितना है, देखो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है भाई साहब आपका थीटा. ठीक है, ये वाला देखो ये आपका थीटा है, ये आपका डी थीटा है ना. तो ये थीटा है तो मतलब ये वाला आपका थीटा हो गया. तो इधर कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा. ठीक है, ओके. सो आपका भाई साहब यहाँ पे अल्फा है, लेट्स से आपने इसको डिवाइड किया है, एक सेक्टर लिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, ये डी क्यू है, दोनों तरफ डी क्यू है भाई साहब. तो डी क्यू इसके वजह से डी ई, तो डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा भाई साहब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये डी ई कॉस थीटा ऐड होता रहेगा.
ठीक है, डी कॉस थीटा ऐड होता रहेगा, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर डी साइन थीटा एंड डी कॉस थीटा, ठीक है। ओके, thus at a point P the electric field due to the small elemental charge is dE, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट्स से लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q अपॉन L। अभी भाई साहब ये L की वैल्यू क्या होगी, ये आपका भाई साहब हाँ R थीटा, ठीक है। आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है मैडम, लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ वैसे ही। गुड, और तुम शायद इकलौती स्टूडेंट हो जो मुझे टोकती हो, विच इज़ गुड, ठीक है। तो अटेंशन लेवल यहाँ पे है, और ये आपकी मम्मी से भी मैंने बोला है, विच इज़ गुड, लेकिन आपके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, फिर सोचिए, आप इस बारे में सोचिए, ठीक है। अगर कोई डफर है तो अभी उससे हम क्या करें, ठोक पीट के उसको वैसा घोड़ा नहीं बना सकते, है ना। तो जितना हम कोशिश कर सके, लेकिन अगर कोई ग्रास्प कर रहा है चीज़ों को तो फिर क्या गैप है, यू आइडेंटिफाइड, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट मे बी मेरा एनालिसिस आपका सही हो, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लगता है कि कोई भी डफर है, लेकिन आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, ये जरा सीरियसली सोचिए इस बारे में, ठीक है। क्यों नहीं आ रहे, कि मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों का पोटेंशियल है इजीली 80 क्रॉस करने का, थोड़ा सा और मेहनत, जिस तरह से आप चल रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो शायद 90 क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा है, वो परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका, ये आपका डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी कॉस थीटा भाई साहब ऐड होता रहेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। अगर तू ऐसे नहीं रहे, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए बेटा, नींद आई ना भाई साहब, सो गया था, मतलब एग्जाम के टाइम पे सो रहा था, अच्छा सोकर आया था, ओके। लैम्डा इज इक्वल टू, लेबर डे है भाई साहब, आज लेबर करना है, ठीक है। तुम सो रहे थे, शर्म नहीं आती भाई साहब, Q बाई L, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाई L हो गया, ये टोटल चार्ज आपका Q है, और L कितना हो जाएगा, L जैसे इन्होंने फरमाया भाई साहब, L इज इक्वल टू R थीटा हो जाएगा। एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी, ये थीटा आपका डिग्रीज में नहीं हो सकता, ये थीटा आपका रेडियंस में होगा, ठीक है। L is equal to R theta, that is something that you have studied in lower standards, but this theta has to be in radians, it cannot be in degrees। Are we clear on this one? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो अपन भाई साहब यहाँ पे देखो, इस लैम्डा को क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई R अल्फा, सॉरी यहाँ पे अल्फा होगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, R अल्फा हो जाएगा। तो भाई साहब आपका R अल्फा है ना, तो Q बाई R अल्फा हो गया, ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। अभी DQ कितनी है भाई साहब, DQ हो जाएगा भाई साहब, लैम्डा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं DQ बाई DX, क्योंकि लैम्डा है क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, Q बाई L लिख रहे हैं तो DQ बाई DX भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे लिखा DQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DQ इज इक्वल टू लैम्डा DX। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, ओके ओके ओके। तो DQ इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा की जगह पे आप क्या रखोगे, K बाई R अल्फा, अगेन अल्फा इज इन रेडियंस, ठीक है, DX। तो DQ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, Q बाई R अल्फा R D थीटा, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे DX की वैल्यू कितनी हो गई, DX की वैल्यू हो गई भाई साहब R D थीटा, समझ में आ रहा है, ये देखो DQ इज इक्वल टू Q बाई R अल्फा, हमने यहाँ पे R D थीटा लिख दिया, क्यों R D थीटा लिख दिया भाई साहब, DX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसको कैसे लिखा है, देखो R D थीटा, वाई हैव वी रिटन दिस R D थीटा, DQ इज इक्वल टू Q बाई R अल्फा है, ठीक है, लैम्डा की जगह पे आपने लिखा Q बाई R अल्फा इंटू DX, ठीक है। DX की वैल्यू आपने R D थीटा क्यों लिखी, नहीं क्या क्या क्या, ओके। तो आपका भाई साहब जो DX है, ये आपका आर्क लेंथ हो गया, और ये भाई साहब DX कितना हो गया, आर्क लेंथ, ठीक है। DX विल बी इक्वल टू व्हाट, R D थीटा, समझ में आ रहा है, ये आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू द लेंथ, ठीक है, ये आपका जो आर्क लेंथ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, DX हो गया आर्क लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू R इंटू D थीटा, ठीक है। अगेन ये D थीटा भी आपका रेडियंस में ही होगा, समझ में आता हूँ, ठीक है। ओके, सो द स्मॉल क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके, तो आपका DQ यहाँ पे ये हो गया, ओके। तो DE की वैल्यू क्या लिख सकते हो भाई साहब, K DQ बाई R का स्क्वायर। तो अभी K की जगह पे क्या लिखोगे, आपका भाई साहब DQ का वैल्यू कितना आया, देखो इतना आया है, तो QR D थीटा अपॉन, ठीक है, R स्क्वायर है, और ये हो गया भाई साहब आपका L, ठीक है, R स्क्वायर हो गया भाई साहब अपॉन L, ठीक है। तो DE की वैल्यू KQ D थीटा, यहाँ पे LR हो गया ये, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे D साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0। क्या ही समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं है भाई साहब।
आप अगर सारे कंपोनेंट्स को ऐड करोगे भाई साहब सब कैंसिल होते जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? तो आप इंटीग्रेशन से दिखाओ या पूरा आप बोल सकते हो कि फॉर एवरी पॉइंट ऑन दिस साइड, फॉर एवरी पॉइंट ऑन दिस हाफ there will be a corresponding point on this half which will have the same DE sin theta. Since DE sin theta are equal and opposite, therefore all these points will cancel each other. या आप उसको इंटीग्रेटेड तरीके से क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस ये आपका बच जाएगा भाई साहब। ठीक है, ओके अभी यहां पे देखो माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर अल्फा बाई 2 क्यों लिया हुआ है? कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस को माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 क्यों लिया हुआ है? देखो भाई साहब ये पूरा एंगल कितना है? अल्फा, तो इधर कितना होगा अल्फा बाई 2 और इधर कितना होगा अल्फा बाई 2, इक्वली डिवाइड होगा। इसके लिए ज्योमेट्री के नहीं कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं, है ना। तो अगर आपने इसको लिया हुआ इधर, ये वाला क्या करेंगे? देखो एक को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो एक नेगेटिव मतलब माइनस अल्फा बाई 2 और एक पॉजिटिव मतलब प्लस अल्फा बाई 2। एक एंगल आपका नेगेटिव होगा, दूसरा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपका भाई साहब कहां से कहां तक है? माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। आर बी अंडरस्टैंडिंग कि भाई साहब ये क्यों होगा? माइनस अल्फा बाई 2 से भाई साहब प्लस अल्फा बाई 2, डी ई साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ई एक्स की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे 0 हो गई, ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस अल्फा बाई 2। तो अभी भाई साहब कॉस थीटा कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन थीटा अल्फा बाई 2, तो क्यू एल 2 के क्यू साइन, अच्छा यहाँ पे कितना है देखो, साइन अल्फा बाई 2 माइनस माइनस साइन अल्फा बाई 2, अंदर वाले माइनस को बाहर निकालोगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 साइन अल्फा बाई 2 दैट इज साइन अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? 2 के क्यू एल आर साइन अल्फा बाई 2 है। अच्छा इस 2 को बाहर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 साइन अल्फा बाई 2। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द रिंग इज गिवन बाय ई वाई दैट इज 2 के क्यू साइन अल्फा बाई 2। अभी क्यू बाई एल को अपन क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। ठीक है, 2 के लैम्डा आर साइन अल्फा बाई 2। Hence the equation is general for finding the electric field at the center of the arc। ठीक है, तो किसी भी सेंटर पे आपका ये जनरल इक्वेशन हो जाएगा। क्या अभी तक किसी को समझ में नहीं आया? कोई भी प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे डिराइव करके बता सकता हूँ। ओके ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब यहाँ पे। सो लेट्स से आप यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हो गया आपका लेट्स से हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया लेट्स से आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, हम यहाँ पे एक आर्क ले रहे हैं। आर्क यहाँ पे हो पाएगा क्या भाई साहब? अरे हो जा भाई साहब, 3D नहीं होगा यार। चलो आर्क आर्क आर्क, अब ये जो आ गया है इसका अपन क्या करेंगे? इसको अगर हम काला काला कलर कर दें, वैसा बस बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज हो गया। ठीक है भाई साहब, काला काला कलर कर दिया। आग बनाना है अपने को। ठीक है, क्लियर है? ओके, मैं जिस ऑफिस में काम करता था तो अपने मेरा जो मतलब एकदम टॉप बॉस था एकदम, ठीक है, खैर जो भी है। तो एक दिन ना क्या हुआ, हमारा जो पीसी है ना, एक बंदे का पीसी ना, उसमें स्क्रीन उल्टा हो गया ऐसे, मतलब अपने आप ही स्क्रीन ऐसा आ रहा था ना, ये ऐसा इमर्ज हो गया। तो वो बाहर आया, मतलब व्हाट हैपेंड? सर टेक्नीशियन को कॉल किया है, वो आ रहा है। उसने आके पीसी को उल्टा कर दिया। काम करना है ना, करना है इसमें। ओके, कुछ अजीबोगरीब हरकत करनी पड़ती है। ओके, सो जैसे समझो यहाँ पे हमने एक आर्क लिया हुआ है और इस पूरे आर्क में भाई साहब कितना चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चा? बॉडी
आपने Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। अभी इस पूरे आर्क में आपने Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो लेट अस से ये वाला जो लेंथ है भाई साहब, ये वाला जो लेंथ है ये आपका है L, कैपिटल L है, ठीक है, ठीक है, कैपिटल L है। ये आपका टोटल एंगल कितना सबटेंड कर रहा है भाई साहब, अल्फा। तो पहली बात तो क्या हो जाएगी, L, कैपिटल L, लेट्स से ये रेडियस है आपका R, दिस रेडियस इज बेसिकली R, तो कैपिटल L आपका क्या हो जाएगा, R इंटू अल्फा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये अल्फा आपका रेडियंस में होगा, ठीक है। अगर इस अल्फा को अपन डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये भाई साहब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा भाई साहब आपका अल्फा बाई 2, ठीक है। तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी बोलो, टोटल चार्ज Q अपॉन L, दैट विल बी हाउ मच, टोटल चार्ज Q अपॉन R अल्फा, वेयर अल्फा इज इन रेडियंस, ठीक है। ओके, अभी अपन ने क्या किया है कि भाई साहब एक स्मॉल चार्ज लिया हुआ है, एक छोटा सा भाई साहब चार्ज यहां पे लिया हुआ है, ये चार्ज भाई साहब आपके कितने का है, dq, ये कितने का है भाई साहब dq, और ये वाला लेंथ कितना है dx, ये वाला लेंथ कितना है भाई साहब आपका dx, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ओके, तो ये भाई साहब आपका dq है और dx लेंथ है, तो इस लैम्डा को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, dq बाई dx, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका dq और ये हो गया भाई साहब आपका dx, इस लैम्डा को अपन लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपन ने क्या डाला हुआ है, लेट्स से ये वाला एंगल आपका, लेट्स से भाई, ठीक है, ये वाला एंगल तो आपका था कितना, अल्फा बाई 2, ठीक है, और ये भी आपका कितना था भाई साहब, अल्फा बाई 2। लेट्स से ये वाला एंगल हमने डाल दिया भाई साहब डी थीटा, ठीक है, ये वाला आपका थीटा है, ये वाला आपका थीटा है, ये वाला आपका कितना है डी थीटा, तो डी क्यू डी एक्स, ठीक है, ये समझ में आ रहा है भाई साहब, डी थीटा। तो अपन अगर भाई साहब डी एक्स की वैल्यू निकालें, डी एक्स दैट इज आर्क लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना है डी थीटा आर, तो आर डी थीटा हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया एल इज इक्वल टू आर अल्फा, तो वैसे अपन क्या कर सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा, एल इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। ओके, और अभी अपन यहाँ पे देखो, लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसे जा रहा होगा, दिस विल बी गोइंग लाइक दिस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपका ऐसे जा रहा होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले ले, तुम नहीं, ठीक है। ओके, तो चलिए ये वाला थीटा है, देखो ये थीटा है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये वाला कितना हो गया आपका, थीटा हो गया, है ना। इस डी क्यू की वजह से भाई साहब लेट से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डी ई है। क्या ये समझ में आ रहा है, इस डी क्यू की वजह से एट दिस पॉइंट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ई। ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, डी ई कॉस थीटा, और बच्चा पार्टी ये वाला कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, ठीक है। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका एक्स एक्सिस पे हो गया, ये आपका भाई साहब वाई एक्सिस पे हो गया, वाई एक्सिस आपको इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ओके, सो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अपन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस निकाल रहे हैं तो इन सारे को ऐड करते जाएंगे, किसको भाई साहब, डी साइन थीटा को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा फ्रॉम कहां से कहां तक भाई साहब, माइनस अल्फा बाई 2 से भाई साहब प्लस अल्फा बाई 2, ये माइनस अल्फा बाई 2 हो गया, ये प्लस अल्फा बाई 2 हो गया, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली 0, ठीक है, क्योंकि आपका भाई साहब यहाँ पे डी साइन थीटा इधर है इसका, तो इसका भी डी साइन थीटा किधर होगा भाई साहब, इधर होगा, है कि नहीं। हर एक पॉइंट का एक इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता हुआ पॉइंट आपको मिल जाएगा। सो सारे डी साइन थीटास एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो व्हाट, अरे सॉरी एक्स एक्सिस होगा, करेक्ट, दिस विल बी एक्स एक्सिस, दिस विल बी एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया हुआ है, डी साइन थीटा, ये सारे भाई साहब इधर के पॉइंट वाले और इधर के पॉइंट वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हियर इफ यू इंटीग्रेट और रादर ऐड all the components along the x axis you are going to get a 0, clear है। okay, now let's say हम यहाँ पे x axis पे ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis, समझम कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, डी ई
कॉस थीटा है ना, ये आपका डी ई एक्स लेट से हम कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये कहाँ से कहाँ तक भाई साहब, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। अभी पहले बात तो आपका भाई साहब डी कितना होगा, डी होगा भाई साहब कितना, यहाँ से यहाँ तक है, सो डी क्यू चार्ज है और ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब आपका, दिस डिस्टेंस इज आर, समझ में आता है ये। तो डी ई विल बी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, आर का स्क्वायर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है ओके। अभी इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, के डी क्यू की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एक्स लिख सकते हैं। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो डी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा डी एक्स, चलिए भाई साहब यहाँ पे लैम्डा डी एक्स लिख रहे हैं, अपॉन भाई साहब क्या है आपका आर का स्क्वायर, ठीक है ओके। के और लैम्डा आपके कांस्टेंट हो गए, इस डी एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हो बोलो, क्योंकि हमको जो इंटीग्रेशन करना है ना वो बेसिकली थीटा के टर्म्स में करना है, एक्स के टर्म्स में नहीं, तो इसीलिए हम इसको सब कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं। पहले अपन ने डी क्यू को कन्वर्ट किया डी एक्स में, अभी इस डी एक्स को कन्वर्ट करेंगे डी थीटा में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चा बाडी, तो डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा होता है, तो यहाँ पे हो गया के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन भाई साहब आर का स्क्वायर, कैंसिलम यहाँ पे कितना हो गया, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। बच्चा बाडी ये समझ में आ रहा है, डी की वैल्यू, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर टू दिस, ठीक है। तो आपका डी का वैल्यू कितना हो गया, के लैम्डा डी थीटा बाई आर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है ओके। तो अभी भाई साहब यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको इंटीग्रेशन में डालिए, तो यहाँ पे हो गया आपका डी में आपका के लैम्डा और आर, ये तीनों आपके क्या हो गए कांस्टेंट, बाहर फेंकेंगे इसको आप, ठीक है। सो दैट विल बी के लैम्डा बाई आर, इसको आपने बाहर फेंका भाई साहब, ये हो गया कितना, डी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया यार, हाँ ई साइन कॉस थीटा होगा ना, ये तो लिखा ही नहीं भाई साहब हमने, डी कॉस थीटा मतलब के लैम्डा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, है ना, कॉस थीटा डी थीटा। देखो यहाँ पे डी ई कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा लिखा हमने और इसका भाई साहब डी थीटा इधर आया, उस डी थीटा को और के लैम्डा बाई आर को बाहर निकाला, ठीक है। कॉस थीटा का कितना हो जाएगा बोलो, दैट विल बी के लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा भाई साहब कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक, आर वी क्लियर, ठीक है ओके 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 ओके। चलो भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, दिस विल बी के लैम्डा बाई आर, ठीक है, माइनस साइन अल्फा बाई 2, माइनस साइन अल्फा बाई 2 माइनस, ठीक है, साइन, भाई क्या कर रहा हूँ भाई साहब, माइनस साइन हो गया ना, कॉस थीटा का माइनस कहाँ से आएगा भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस थोड़ी आएगा, ये आपका प्लस ही आएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन, सॉरी ये वाला आपका भाई साहब प्लस होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी साइन थीटा की जगह पे लिखोगे अल्फा बाई 2 माइनस, ठीक है, साइन माइनस अल्फा बाई 2, सिर्फ कॉस ही एक है जो माइनस को हजम कर सकता है, बाकी टैन और साइन बाहर फेंकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका के लैम्डा बाई आर, इधर हो गया कितना बोलो, साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, के लैम्डा बाई आर, यहाँ पे हो गया 2 और इधर हो गया कितना, साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो रहा है, दिस विल बी हाउ मच इंटीग्रेशन, तो आपका ई एक्स का वैल्यू कितना हो गया, दिस विल बी द वैल्यू, ठीक है, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, ठीक है ओके। और सिर्फ यही फील्ड होगा क्योंकि डी वाई ई वाई तो आपका पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप अपन रिजल्टेंट अगर लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर तो भाई साहब हो गया आपका क्या, जीरो का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, तो मतलब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर ई वाई आ जाएगा भाई साहब, और ई वाई की वैल्यू, ये ई एक्स कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ई वाई, ठीक है। तो ई वाई की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई यहाँ पे, के लैम्डा के 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है, साइन अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा भाई साहब, आर बी क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके ओके।
तो 2k लैम्डा, ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, इस लैम्डा को आप q बाई एल भी लिख सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अभी भाई साहब अगर सेंटर ऑफ अ क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? 1/4, ठीक है। सेंटर ऑफ अ क्वार्टर मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये आपका आर्क है, ये एंगल सब्टेंड कर रहा है, ठीक है। क्वार्टर में एंगल तो ये हो गया, देखो ये आपका आर्क है एक क्वार्टर, तो कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है? 90, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 90। सीधा हिसाब डालो यहाँ पे 2k लैम्डा साइन 90/2, साइन 90/2 कितना हो गया? साइन 45, दैट इज 1/√2। समझ में आता है ये? ठीक है, तो 2k लैम्डा इंटू 1/√2, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? √2k लैम्डा बाई आर। क्लियर है? ओके। एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, अभी सेमी सर्कुलर पे आओ, देखो तो आपका कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है भाई साहब? 180, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? साइन 180/2, दैट इज साइन 90। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर। सो दैट विल बी 2k लैम्डा बाई आर। आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, ये सवाल करनी है तो करनी है भाई साहब। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग shown in the figure where lambda is the linear charge density। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर प्लस लैम्डा, और इधर कितना है भाई साहब आपका? माइनस लैम्डा। क्या हो जाएगा? क्यों जीरो हो जाएगा? मतलब आप बोल रहे हो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा? दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? आप मतलब सवाल को मैथमेटिकली ना करके यहाँ पे बोल रहे हैं प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा है, सो दे शुड आइडियली कैंसिल। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? ओके, चलिए देखते हैं भाई साहब। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द अपर रिंग कितना है? प्लस लैम्डा, और लोअर रिंग कितना है? माइनस लैम्डा, ठीक है। इसको अगर हम अलग अलग लेते हैं, इसको अलग अलग ले रहे हैं, तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये प्लस है, प्लस से दूर भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव के तो आपका भाई साहब इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इसकी तरफ भागेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भागेगा, तो मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे भाई साहब आपस में। समझ में आ रहा है ये? सो मैथमेटिकली उतरना पड़ेगा चीज़ों में, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपने बोल दिया अरे भाई ये प्लस है, प्लस है, चलो जीरो हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा भाई साहब, इससे हाँ, अरे रुकना भाई साहब, पहले तो ये आंसर बोला था तुम लोगों ने, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो सॉरी, ये लैम्डा इससे दूर भाग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तो आपको मालूम है कि भाई साहब यहाँ पे ई साइन थीटा दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, ई साइन थीटा दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो ई कॉस थीटा ऐड होगा। यहाँ पे भी भाई साहब वही होगा, लेकिन ये इसके साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इससे दूर भाग रहा है, ठीक है। तो अगर आपने अलग अलग से रिजॉल्व किया, ई ए की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? 2k लैम्डा, और यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा? 180/2। 2k लैम्डा अभी आपने पढ़ा, देखो फॉर्मूला क्या है? 2k लैम्डा, अरे बाप रे किधर है भाई साहब? ओके, तो ये आपका 2k लैम्डा साइन अल्फा बाई 2 होता है। तो अगर आपका सेमी सर्कुलर रिंग है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 2k लैम्डा साइन 90, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? आपका वैल्यू हो गया भाई साहब 2k लैम्डा बाई आर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसकी वजह से कितना हो जाएगा भाई साहब? आप सीधा डालोगे 2k लैम्डा बाई आर, इसका भी वही होगा क्योंकि, लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखो, ई ए का डायरेक्शन इधर और ई बी का डायरेक्शन इधर, यहाँ पे आपस में सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका वर्टिकली रहेगा। तो ई ए का डायरेक्शन भाई साहब इधर और ई बी का डायरेक्शन इधर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई साहब? ऐड हो जाएंगे, बोथ आर गोइंग टू गेट एडेड। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज गिवन बाय EP विल बी इक्वल टू EA प्लस EB, दैट विल बी हाउ मच? 2k लैम्डा बाई आर प्लस 2k लैम्डा बाई आर, दैट्स गोइंग टू बी 4k लैम्डा बाई आर, ठीक है। क्लियर है? चलिए भाई साहब इसको करना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग एज शोन इन द फिगर वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे भाई साहब है आपका लैम्डा, यहां पे है 2 लैम्डा, यहां पे है माइनस लैम्डा, और यहां पे -2 लैम्डा, ठीक है।
कुछ हरकत में आएंगे आप? पेन कॉपी कुछ है? ओके तो आपका फॉर्मूला क्या है? देखो 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ऑप्शन सी है। चलिए देखते हैं। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। यहां पे आते देखो, ठीक है, 2k फॉर क्वाड्रेंट ए द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स सी। देखो भाई साहब क्वाड्रेंट ए है ये, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? ये सी की तरफ होगा ना भाई साहब, है ना? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा भाई साहब? सी की तरफ होगा, ठीक है, क्लियर है? ओके, द क्वाड्रेंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड विल टुवर्ड्स सी सिंस द चार्ज इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट ए, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय व्हाट? 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन 90 बाई 2, दैट इज साइन 45। देखो 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 भाई साहब, अरे देखो 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 देखो, देखो यहां पे आपका फॉर्मूला क्या है? E विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, है ना? तो 2k लैम्डा बाई आर लिखा हमने, हम पहले इसको डील कर रहे हैं। यहां पे भाई साहब आपका अल्फा कितना हो गया? 90 बाई 2 इज 45, साइन 45 इज हाउ मच? तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 45, दैट विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1 बाई अंडर रूट 2। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? अंडर रूट 2k लैम्डा बाई आर। समझ में आ रहा है? ई ए की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट 2k लैम्डा बाई आर। फॉर क्वाड्रेंट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड शोन, ये आपका 2 लैम्डा है, ठीक है, इज टूवर्ड्स क्वाड्रेंट डी। ये किसकी तरफ है भाई साहब? टूवर्ड्स क्वाड्रेंट डी सिंस द चार्ज इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट बी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड, ये आपका 2 लैम्डा है, ठीक है, तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा? 2k, अभी लैम्डा की जगह पे आप क्या लिखोगे? 2 लैम्डा, ठीक है, और ध्यान दो यहाँ पे ये प्लस है तो ये इसकी तरफ होगा, ठीक है, ये प्लस है तो ये भी भाई साहब इसकी तरफ होगा। समझ में आ रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, तो 2k इंटू लैम्डा की जगह पे आप क्या लिखोगे? अभी 2 लैम्डा, ठीक है, बाई आर, और वही आपका क्या? साइन 45, ठीक है, तो 2k लैम्डा मतलब आपका हो गया कितना? 4, और यहाँ पे हो गया आपका 1 बाई अंडर रूट 2, है ना? इसको अगर अपन करते हैं 1 बाई अंडर रूट 2 तो ये हो गया आपका 2k इंटू 2 लैम्डा बाई आर इंटू 1 बाई अंडर रूट 2। तो यहाँ पे कितना होता है भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू, एक 2 बचा और एक अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 k लैम्डा बाई आर, 2 अंडर रूट 2 k लैम्डा बाई आर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो ये हो गया भाई साहब आपका ई बी, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2 k लैम्डा बाई आर। ये हो गया भाई साहब कितना? 2 अंडर रूट 2 k लैम्डा बाई आर। ठीक है, आर बी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। अभी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में ही होगा, है ना? इसके वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 2k, तुम कहीं नाच रहे हो, ठीक है, 2k और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका लैम्डा बाई आर साइन 45, तो मतलब ये हो गया भाई साहब आपका कितना? k लैम्डा बाई अंडर रूट 2 आर, सॉरी अंडर रूट 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका देखो 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 45, दैट इज 1 बाई अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, ओके। और क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका कितना हो जाएगा? इसका डबल, दैट इज 2 अंडर रूट 2k लैम्डा बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये सब के सब इस तरफ होंगे, ओके। सो फॉर क्वाड्रेंट सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स सी इटसेल्फ विद अ वैल्यू ऑफ व्हाट? ये वाला देखो सी इसकी तरफ ही है भाई साहब, 2 अंडर रूट 2k लैम्डा बाई आर, और क्वाड्रेंट डी के ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2k लैम्डा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका देखो ये ई सी हो गया और ई ए इसी तरफ है कि नहीं? ई सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बोथ इन द सेम डायरेक्शन,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी बोथ इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ई डी और ई बी प्लस और ई सी और ई ए प्लस, ठीक है। तो आपका भाई साहब द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इन क्वाड्रेंट डी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई बी प्लस ई डी, ठीक है। ई बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना है? 2√2 k लैम्डा बाई आर। और भाई साहब आपने ई बी की वैल्यू निकाल ली है, ये ई बी की वैल्यू हो गई, और ई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 k लैम्डा बाई आर। तो आपका कितना हो गया? 3√2 k लैम्डा बाई आर, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब इसमें भी वही हो जाएगा, देखो, ठीक है, 3√2 k लैम्डा बाई आर। ये हो गया भाई साहब आपके E1 E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? अभी इन दोनों के बीच में भाई साहब कितना एंगल आ जाएगा? व्हाट वुड बी द एंगल? ठीक है। सो आपका ऑब्वियस सी बात है, देखो इसके इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों भी आपके सेम हैं और इधर से आ रहे हैं ना, तो दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? ये 45 होगा, ये 45 होगा, सो दिस विल फॉर्म 90, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स हैं विच आर हैविंग एन एंगल ऑफ अल्फा, सो a² + b² + 2ab cos ऑफ अल्फा, तो e² + दिस प्लस cos ऑफ 90। cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई साहब √2 3√2 k लैम्डा बाई आर, दैट इज 6 k लैम्डा बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट चाहिए? समझा? ओके, चलो भाई साहब यही तो मजा है। चलो 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 घुमा घुमा के। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन एट अ पॉइंट P वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपका भाई साहब लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। वो भाई साहब देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, ये वाला जो है ना, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है। ये भाई साहब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है। ये भाई साहब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और पूरे इस बॉडी में कितना है? लैम्डा, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए इसको, फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ओके बच्चा पार्टी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ये जो सवाल अपन करने वाले हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो सवाल है आपका ये आपका एक वायर है जो यहाँ से भाई साहब इन्फिनिटी पे है, ठीक है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और ये वाला वायर है भाई साहब 0 टू इन्फिनिटी, और बीच में आपका ऐसा एक वायर है, इसमें आपका लैम्डा जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस बेसिकली द लैम्डा चार्ज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, चलो भाई साहब इसमें अपन अगर करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपका एक वायर है विच इज़ बेसिकली हैविंग अ चार्ज लैम्डा, और ये इनफाइनाइट लेंथ तक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो अपन ने एक डी क्यू सेगमेंट उठाया है जिसका लेंथ है डी एक्स, ठीक है, और लेट्स से ये वाला जो है वो एंगल कितना, ये वाला जो है भाई साहब आपका यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर डाला है किस पे? इस इनफाइनाइट वायर पे, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, ठीक है, दिस इज एन वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ। अभी आपने क्या किया, इससे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला, इस परपेंडिकुलर का लेंथ आपका क्या हो गया भाई साहब r, ठीक है, और लेट्स से ये वाला डिस्टेंस है x, ये हो गया आपका dx और ये हो गया आपका dq। तो यहाँ पे dq चार्ज है विच इज बेसिकली सस्पेंडिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ये वाला एंगल थीटा है,
ये वाले परपेंडिकुलर से इस पॉइंट का भाई साहब हो गया लेट्स से इनफाइनाइट पॉइंट का ये हो गया भाई साहब अल्फा, और इधर वाले इनफाइनाइट पॉइंट का हो गया लेट्स से एंगल बीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? डी ई की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, डी ई की वैल्यू हो गई के डी क्यू बाई ए का स्क्वायर। ये डी क्यू है और ये आपका भाई साहब ए है, ये एक्स है और ये आर है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज एक्स एंड दिस इज आर, ये आपका थीटा है। कितने गंदे लग रहे हैं आपका चप। ओके, तो डी क्यू और ये हो गया भाई साहब आपका डी, तो ये डी क्यू का वैल्यू कितना हो गया? डी ई। ठीक है, सो डी ई की वैल्यू कितनी हो गई? के डी क्यू बाई ए का स्क्वायर। अभी यहां पे देखो ये आपका ट्राइंगल पी क्यू आर है। सो आपका भाई साहब ये ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया। ठीक है, दिस विल बी पी, दिस विल बी भाई साहब आपका क्यू और ये हो गया आपका आर, ये डिस्टेंस हो गया एक्स। नहीं खा पी लो, अच्छा हो गया सबका, ओके चलिए। ओके, तो ये हो गया आर और ये हो गया भाई साहब ए, और ये वाला एंगल कितना है भाई साहब आपका? थीटा। ठीक है, ओके, तो इस पॉइंट के वजह से देखो, इस वाले पॉइंट की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है? इस वाले पॉइंट की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है भाई साहब? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है आपका डीई। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज बेसिकली डीई, ये डीई क्रिएट हो रहा है। ओके, अभी डीई का अगर आप यहाँ पे इसका पैरेलल कंपोनेंट ले लोगे भाई साहब, इफ यू टेक इट दिस वे, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? थीटा। तो ये डीई है, तो ये आपका कितना हो गया? डीई कॉस थीटा। और भाई साहब साइमल्टेनियसली ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? डी साइन थीटा। ठीक है, सो दिस विल बी डीई साइन थीटा। ठीक है, ओके, तो अभी हम यहाँ पे बात करें लेट्स से इनफाइनाइट पॉइंट पे आपका अल्फा इधर का है और इनफाइनाइट पॉइंट इस तरफ पे आपका बीटा है। ठीक है, ओके, तो अभी हम ट्राइंगल पी क्यू आर से क्या बोल सकते हैं? कॉस थीटा, ये वाला थीटा है देखो, आर बाई ए है। ठीक है, तो ए को अपन क्या लिख सकते हैं? ए कैन बी रिटन एज आर बाई कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया हमने, तो ए स्क्वायर क्या हो गया? आर स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ए स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अभी डीई की वैल्यू कितनी है बोलो? डीई की वैल्यू है के डी क्यू बाई ए का स्क्वायर। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? इस पे अपन लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू के डी क्यू बाई ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना है देखो? आर स्क्वायर, और ऊपर गया कितना भाई साहब तुम्हारा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ऊपर गया भाई साहब आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू, यहां पे आपका भाई साहब लेट्स से एल लिया हुआ है हमने, तो Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर L, Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर L। तो अपन लैम्डा को भाई साहब dQ बाई dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके वजह से अपन dQ को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट dQ एज लैम्डा dx, लैम्डा बाई dx नहीं, लैम्डा dx। ठीक है, ओके, सो आप इस dx इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? दिस कैन बी रिटन एज k dQ, dQ की जगह पे अपन लिखेंगे भाई साहब क्या? लैम्डा dx। सो ये हो जाएगा आपका के लैम्डा डी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैम्डा डी एक्स डी क्यू इज इक्वल टू, अभी डी क्यू भाई साहब क्या हो जाएगा? क्यू बाई एल, लैम्डा मतलब कितना हो गया? लैम्डा डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं देखो? क्यू बाई एल डी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको देखते हैं हम के लैम्डा डी एक्स बाई, तो इसकी जगह पे भाई साहब के और लैम्डा की जगह पे आपने क्यू लिखा और ये एल, ये हो गया आपका भाई साहब कितना? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया डी एक्स अपॉन आर का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब ये हो गया। ओके ओके ओके, सो अभी देखते हैं भाई साहब एक्स इज इक्वल टू आर टैन थीटा है। देखो यहाँ पे आपका ये ए है, ये ए है और ये एक्स है, तो अगर हम करते हैं एक्स बाई आर, ये आपका x बाई आर कितना होगा बोलो? tan थीटा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? r tan थीटा। अभी इसको आप दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, दोनों साइड में जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? dx इज इक्वल टू r, ये कितना हो जाएगा? सेक्स, देखो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा भाई साहब? dx डिफरेंशिएटिंग, इसमें आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू r d बाई डी थीटा ऑफ tan ऑफ थीटा, विच गिव्स यू हाउ मच? r sec स्क्वायर थीटा। तो dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई साहब आपका। ठीक है, क्लियर है?
फिर से आओ वापस इस इक्वेशन में, तो इस dx की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, dx की जगह पे लिख सकते हो r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिखोगे भाई साहब k q बाई l cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे अपन लिखेंगे r sec स्क्वायर थीटा, ये r कैपिटल होगा भाई साहब, r, ओके चलिए यहाँ पे स्मॉल में लिया हुआ है, ओके ठीक है भाई साहब, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब k q l r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन भाई साहब कितना है r का स्क्वायर। देखो तुमको या तो पूरे चीज को dx में लाना है या तो d थीटा में लाना है, ठीक है, तो इसीलिए तुम dx को कन्वर्ट कर रहे हो d थीटा में, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये और ये कैंसिल, ठीक है, ये r जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका k q l, यहाँ पे है आपका cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और नीचे क्या बचा आपका r, ठीक है, नीचे क्या बचा आपका 1, और ये हो गया आपका d थीटा, दिस विल बी बेसिकली d थीटा, क्लियर है, दिस विल बी k q l d थीटा। सो आपका यहाँ पे हो जाएगा देखो k q d थीटा बाई एल आर, क्या ये समझ में आ रहा है, k q d थीटा बाई एल आर, ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका de की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, de की वैल्यू हो गई k q d थीटा बाई एल आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। अभी जो पैरेलल कंपोनेंट है बच्चा पार्टी वो कितना है, de cos, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका पैरेलल है, ठीक है, तो de sin थीटा इधर और de cos थीटा इधर, तो आपका भाई साहब अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो E जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा भाई साहब, d cos थीटा, है ना, अरे बोलो ना बोलो, ये वाला d cos थीटा, इसको अपन ऐड करते जाएंगे और इधर क्या ऐड करेंगे d sin थीटा, ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं E परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा बोलो, d e cos थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक भाई साहब आपका, भाई साहब बोलिए, आपने देखा यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, लेट्स से इसको अगर हमने पॉजिटिव ले लिया और ये वाला आपका बीटा है, ठीक है, ये एंगल था ना भाई साहब, ठीक है, अल्फा और बीटा, ये वाला आपने अल्फा को लिया भाई साहब पॉजिटिव, तो बीटा को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, सो आपने कहां से कहां तक लिया है भाई साहब, अल्फा से लेट्स से माइनस बीटा, ठीक है, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली ये E परपेंडिकुलर वाला हो गया ना, पैरेलल वाला क्या हो जाएगा, E पैरेलल वाला हो जाएगा अल्फा से माइनस बीटा डी ई साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इसका फटाफट से करते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो K, तो ये हो गया आपका बिटवीन माइनस बीटा एंड अल्फा, D की जगह पे क्या लिख सकते हो, K Q बाई L R, और यहाँ पे हो गया cos थीटा D थीटा, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया K Q बाई L R, ये हो गया माइनस बीटा और ये हो गया अल्फा, दैट विल बी cos थीटा d थीटा, तो d बाई डी एक्स जो इंटीग्रेशन भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, साइन थीटा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का भाई साहब हो जाएगा साइन एक्स, तो k q बाई एल आर साइन ऑफ थीटा between the angles of alpha and minus beta, so we have here k q by l r sin of alpha, ठीक है, minus sin of minus beta, ठीक है, so that gives you how much, k q by l r sin alpha plus sin beta, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका क्या, this is basically your नहीं कौन सा था भाई साहब, ये था ना आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये आपका हो गया भाई साहब परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसी तरह से भाई साहब पैरेलल कंपोनेंट अगर हम लेंगे तो पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, बिटवीन माइनस बीटा एंड अल्फा, तो ये हो गया आपका डी ई साइन ऑफ थीटा, सो यहाँ पे डी ई की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू बाई एल आर, ठीक है, माइनस बीटा से अल्फा, और यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बिटवीन अल्फा एंड माइनस बीटा, ये हो गया के क्यू बाई एल आर, ठीक है, सो ये हो गया आपका कितना, के क्यू बाई एल आर, ये हो गया कॉस माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ माइनस बीटा, अब ये माइनस बीटा को हजम कर लेगा भाई साहब, तो ये हो गया आपका कितना, माइनस के क्यू बाई एल आर कॉस बीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस, सॉरी, सो दिस विल बी बेसिकली के क्यू बाई एल आर कॉस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा,
ये हो गया भाई साहब आपका क्या, दिस विल बी बेसिकली आपका पैरेलल कंपोनेंट है ना, ये आपका हो गया पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। यही चीज देखो, तो आपका भाई साहब पैरेलल कंपोनेंट में कितना आया, ई पैरेलल विल बी इक्वल टू के क्यू बाई एल आर, और ये हो गया आपका कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच्चा भाई कितना आ जाएगा, के क्यू बाई एल आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या ये मामला सही आ रहा है भाई साहब? ओके चलिए अभी इस क्वेश्चन को अपन, तो यहाँ पे आपका देखो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एल आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे यही पूछा है, देखो इधर से यहाँ तक, इधर से यहाँ तक इन्फिनिटी है, ठीक है, और ये बीच में है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन एट अ पॉइंट पी वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको पॉइंट पी में भाई साहब लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ फ्रॉम द फिगर बच्चा पार्टी, ठीक है, इट इज क्लियर दैट द गिवन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेमी इनफाइनाइट वायर्स। सेमी इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, इधर फाइनाइट है लेकिन इधर इनफाइनाइट, इधर फाइनाइट है लेकिन इधर इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर्स, ठीक है, ओके, एंड अ सेमी सर्कुलर रिंग। फर्स्ट लेट अस टेक दिस टू सेमी इनफाइनाइट वायर्स। ड्यू टू वायर ए द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विल हैव टू कंपोनेंट्स। अभी देखो यहाँ पे वायर ए है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू दिस विल हैव बेसिकली टू कंपोनेंट्स, अगेन परपेंडिकुलर और, ठीक है, due to wire the electric field at point P will have two components, ठीक है, one parallel to the rod and the other one perpendicular। अभी recall the angle subtended by semi infinite wire at the point P। अभी देखो यहाँ पे ये वाला अल्फा एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये वाला भाई साहब बहुत दूर है, तुमको नहीं दूर जाने बोला था, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब ये बहुत दूर है, मतलब ये वाला एंगल ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी भाई साहब, जीरो, और बीटा की वैल्यू बोलो इसके साथ कितनी की है, 90 डिग्री है। ये वाले पॉइंट की वैल्यू पी के साथ कितने की है, 90 डिग्री की है। आर वी क्लियर? ओके, तो अभी अगर भाई साहब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, अभी परपेंड यहाँ पे भी देखो सिमिलरली टू वायर सी देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इसी तरह से यहाँ पे भी होगा भाई साहब, ठीक है। तो इधर देखो भाई साहब आपका अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा कितना हो गया है, 90 डिग्री। तो पैरेलल कंपोनेंट अभी अभी आपने ताजा पढ़ा भाई साहब, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एल आर, यहाँ पे है भाई साहब कॉस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो के क्यू बाई एल आर, के क्यू बाई एल आर, और यहाँ पे कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है बोलो, 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, ठीक है, तो ये हो गया 0 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, कॉस ऑफ 0 मतलब 1 हो गया ना। देखो अल्फा की वैल्यू 0 है, तो ये लंबा भाई साहब है वो कितना ही एंगल बनाएगा, ऑलमोस्ट 0 एंगल हो जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये हो गया आपका भाई साहब -1, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, माइनस के क्यू एल आर, ये हो गया आपका पैरेलल कंपोनेंट। देखो जिसको अपन के क्यू बाई एल को अपन लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई एल आर साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, साइन 0 विच इज 0, और साइन नहीं माइनस क्यों नहीं, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ना, साइन 0 का भाई साहब 0 हो गया, और साइन बीटा का वैल्यू मतलब साइन 90 हो गया 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एल आर के लैम्डा बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर पैरेलल प्लस ई लैम्डा का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, दिस इज गोइंग टू बी के लैम्डा बाई आर इसका भाई साहब स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, ये हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, के लैम्डा बाई आर अंडर रूट ऑफ 2। अभी यहाँ पे देखो ये ई ए जो होगा, ठीक है बच्चा पार्टी, ये ई ए जो होगा भाई साहब ये किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे देखो लैम्डा है और यहाँ पे भी लैम्डा है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो आप ध्यान से देखो इधर का जो डायरेक्शन है दिस विल बी ई ए इस डायरेक्शन में होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, अभी तक हम इस पोर्शन में नहीं आए हैं, वी हैव नॉट कम टू दिस पोर्शन, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट वायर के वजह से इस पॉइंट पी पे एक आपका ई ए बनेगा जो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली इस पोर्शन के वजह से एक ई सी बनेगा जो इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, सेम अंडर रूट 2 के लैम्डा बाई आर। तो ये दोनों भाई साहब आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दे आर गोइंग टू बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर। समझ में आ रहा है?
तो इसका मतलब इस इनफाइनाइट पोर्शन और इस इनफाइनाइट पोर्शन की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। कहानी अभी खत्म नहीं होती है क्योंकि इतना पोर्शन अभी तक बाकी है, ठीक है, इतना पोर्शन अभी तक बाकी है। अभी आपने पढ़ा भाई साहब क्या कि अगर कोई वायर है तो उसका कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2, है कि नहीं? अभी आपने पढ़ा ना भाई साहब, कोई सेमी सर्कल, अभी देखो यहां पे कितना होगा, ये अल्फा कितना हो जाएगा आपका 180 बाई 2 मतलब 90, तो ये हो गया कितना 2k लैम्डा बाई r साइन ऑफ 90 विच इज व्हाट 1, तो ये हो गया आपका 2k लैम्डा बाई r। बस इतना ही आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इसके वजह से और इसके वजह से आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसके वजह से बनता है भाई साहब आपका EB और वही एक्टिव होगा, ठीक है, विच विल बी 2k लैम्डा बाई r। सो योर करेक्ट ऑप्शन हियर, अगर आप सवाल में वापस आओगे तो दिस विल बी 2k लैम्डा बाई r। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके।